Okay, so what all things have we covered in previous class? Yes, sir. Yes, what all things have we covered? Yes, sir. So we have talked Firstly, about, can like, you be a bit suppose, louder? Yeah. yes, sir. So Mhm. suppose we have a server and we add its capabilities so that it can be accessible everywhere. So if we hit its public IP, we will not get a response because it's a simple server. So in order to get its response, we have to convert that simple server into a web server. And we have talked about a number of methods from which we approached as Apache configuration. And then when we will hit its public IP, we will get a simple static page. And after configuration of Apache, we will get like a var www and HTML. And after entering this, it will form an automatic folder in the name of index.html, in which it inside it contains its website contents. And after public IP, if we will map those public IP, we will get a domain name, and mapping can be done by root 53. And all this configuration is done in the Linux server. And for simple server to web server, we have gone through the command like yum install httpd, uh, where it will form a folder in the name of HTML. And to get inside this file, vi index.html. And then to start this Apache, we gave a command name called system ctl start http. But um, the most important thing is we have to enable this, so that we gave a command name called system ctl enable http, so that like it is must, because if we stop and start the system again, we have to again configure the Apache and to do again the commands like system ctl and all those. Then we talk about VNCP. And whenever we deploy our server or we configure our website, we need to enable port 80, and then only anyone can access our server. And whenever we are doing any deploy, we are using like all traffic anywhere, which can anyone can access. But this is not a best industrial practices. For that, we use like for HTTPs and HTTPS, we do enable anywhere or port 443 and 80, so that anyone can come to our server to a particular code and they can see our web server. But in order to enter our server, we have to enable SSH port 2020, port 22 for a particular ID. And for a web server, we have to enable port RDP 3389, and for Linux, we have to enable port SSH 22. And all this we have done in a Linux server. In order to go through the Windows server, we have to configure IIS. And at last, we have talked about the safe-sided risk, like all the service backups. And from that backup, we used to deploy our servers. And also, we have talked about like instances screenshot, like we can check if there is any problem or not, so that we can quantify our problems in the backup services. That's it. Okay, so thank you so much, Subhasri. So that is what we have covered in our previous class. Okay.
Okay. So in today's class, we'll be talking about your IAM users and all those stuffs, okay, roles, and we'll be talking about your AWS CLI, right? So today we'll be having only, classes till maybe 10:30 or 10:45 like that, because there is some, Smart India Hackathon going on. So we will be needing to be present over there. So from the college side, okay. So I will be present over there. So maybe with my team, I will be there. So we'll be closing the session a bit early today. Okay. So I have thought of teaching some other concepts, but IAM is not going to take more time. So that is the reason why I thought to discuss these concepts in today's class. Okay. Chalo. ठीक है, so we'll be discussing about this in today's class. So ये IAM होता क्या है, right? So let us try to understand that first. So let me draw a diagram. So हम ये पहले भी बता चुके हैं। तो इंडस्ट्री में क्या होता है ना कि हमारे पास एक AWS अकाउंट होता है, राइट? सो दिस इज आवर AWS अकाउंट। ओके, सो इन इंडस्ट्री वी हैव AWS अकाउंट, और ये जो AWS अकाउंट होता है ना, इस पे वी हैव योर मल्टीपल अदर थिंग्स, लाइक वी हैव योर मीन्स मल्टीपल अदर रिसोर्सेज। जैसे कि सपोज करो इसके अंदर मेरे पास होंगे एक EC2 का सर्विसेज होगा, या S3। वी हैव नॉट येट टॉक्ड अबाउट योर S3। सो एक स्टोरेज का सर्विस हम लोग यूज करते हैं, वी कॉल जनरली इट एज योर S3 बकेट। ओके, धीरे धीरे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो देर आर एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज। हो सकता है एम्पलीफाई हो सकता है MGN हो सकता है कि वी हैव एन नंबर ऑफ सर्विसेज इन AWS, राइट? सो अल्टीमेटली वी हैव इन नंबर ऑफ सर्विसेज। जैसे मान लो मेरे पास डेटाबेस वगैरह है, मेरे पास सर्वर्स वगैरह हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है ना, एक AWS अकाउंट का हम लोग क्या बनाते हैं, एक रूट अकाउंट क्रिएट करते हैं, राइट? सो विच यू हैव ऑलरेडी सीन इट, रूट अकाउंट। दूसरा एक अकाउंट हम लोग क्या बनाते हैं, एडमिन एक्सेस करके जो देना होता है वो बना देते हैं, राइट? तो ये जो एडमिन एक्सेस वाला भी होता है ना, ये इंटरनल यूज करते हैं लोग। कहाँ? इंटरनल इंटरनल यूज केसेस। फाइन। अभी देखो क्या होता है, whenever I am talking about creating a root user, तो इसके पास सारे privileges होंगे। सिमिलरली वी हैव योर एडमिन। सो एडमिन के पास क्या है, ये जो एडमिन वाला यूजर बनाते हैं, जिसको भी हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस देते हैं, विच यू गाइज आर एक्चुअली यूजिंग राइट नाउ, राइट? तो ये कंपनी के इंटरनल लोग यूज करते हैं इसको, राइट? अब लेकिन ना कंपनी के इंटरनल में भी ना हेड लोग के पास ये एक्सेस होता है। ओके, रूट वाला तो यूज ही नहीं करते, एक बार बना के इसको छोड़ देते हैं। एडमिन वाला हेड, जो भी कंपनी के जो भी हेड होंगे ना, ऑपरेशनल मैनेजर या फिर बिजनेस एग्जीक्यूटिव के जो हेड होंगे, सो दे आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर एडमिन क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो इसका एक्सेस की, सीक्रेट की, यूजर आईडी, पासवर्ड, ये सब चीजें हम लोग देखे थे, राइट? तो ये हमारे पास है, दैट इज फाइन। बट नाउ इसके अलावा भी वी यूज टू क्रिएट मल्टीपल यूजर। सो यूजर स्पेसिफिक रोल, स्पेसिफिक यूजर स्पेसिफिक हम लोग यूजर्स बनाते हैं। जैसे कि सपोज करो कि मेरे को क्या करना है, मेरे ऑफिस में है ना, दो सेगमेंट है। एक है जो वेबसाइट वगैरह देखते हैं, जो वेबसाइट पे ट्रबल शूटिंग करते हैं, उसको इनहेंस करते हैं। तो उनको क्या करना पड़ेगा, मेरे को EC2 का एक्सेस देना पड़ेगा, राइट? तो जो मेरे पास डेवलपर है, उसको क्या करना पड़ेगा, मेरे को EC2 का एक्सेस देना पड़ेगा, EC2 एक्सेस। एंड उसके बाद सपोज आई हैव अ डेटाबेस, सो मेरे DBA होंगे, राइट? कंपनी में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये लोग को मेरे को डेटाबेस का एक्सेस देना पड़ेगा। फाइन। अब बताओ, अगर हम सब कोई को ये एडमिन का क्रेडेंशियल दे देंगे, तो सब कोई, ये जो डेवलपर होगा ना, ये भी मेरा डेटाबेस के अंदर जाके सारा काम कर सकता है, और ये जो DBA होगा, ये भी मेरा एप्लीकेशन के अंदर घुस के सारा काम कर सकता है। तो देखो, कंपनी में ना कभी भी माहौल मतलब इट इज ओके, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है। आई अंडरस्टैंड, कंपनी में बहुत बहुत कंपनी में जाओगे तो अच्छा अच्छा इन्वायरमेंट भी होगा, बट यू नेवर नो, राइट? तो कभी इन्वायरमेंट खराब भी हो सकता है, राइट? सो समटाइम्स इट माइट हैपन। देखो, अभी एक्सेस हम लोग को भी बहुत सारा चीजों का मिलता है, बट बहुत सारा चीजों का नहीं भी मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि जनरली जो मैक्सिमम चीजें होते हैं हमारे पास यहाँ पे, जैसे मान लो हमको EC2 का एक्सेस है,
और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वालों को डेटाबेस का एक्सेस है, अगर मान लो मेरे को दोनों का एक्सेस होगा तो देयर कैन बी अ चांसेस, सपोज मेरा डीबीए से बनता नहीं है, या फिर मेरे को डेटाबेस मतलब डेटाबेस में कुछ इशू हुआ, तो आई थॉट कि यार हम अपने एप्लीकेशन में तो कुछ चेंजेस नहीं किए, डेटाबेस में क्या इशू हो गया, ऑल ऑफ ए सडन हम जा करके डेटाबेस को रिबूट कर दे, रीस्टार्ट करते हैं, that can also create a problem, right? We do not know the urgency of those things. So एक काम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए ना सेपरेट सेपरेट टीम बांट दिया जाता है कंपनीज में, ओके, एंड यू आर रिस्ट्रिक्टेड विथ दोस स्पेसिफिक थिंग्स ओनली। जैसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वाले को क्या दिया जाता है, केवल डेटाबेस का एक्सेस दिया जाता है। अगर वो बंदे EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करना चाहेंगे, दे विल नॉट बी एबल टू एक्सेस दैट। अगर वो बंदे S3 बकेट को एक्सेस करना चाहेंगे, दे विल नॉट बी एबल टू डू दैट, राइट? उसके बाद तो हम लोग को कुछ ऐसे ही टाइप का एनवायरनमेंट बनाना है ताकि मेरा एक AWS अकाउंट है, रूट अकाउंट रखा रहेगा, एडमिन वाला जो भी टॉप के हेड वाले होंगे, ऑपरेशनल मैनेजर, BD के हेड होंगे जो भी, तो वो लोग सब वो एडमिन क्रेडेंशियल रखेंगे। लेकिन हमारे ऑफिस में ही देयर विल बी मल्टीपल सेक्शंस, जैसे डेवलपर का सेक्शन, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटा वेयर हाउसिंग एडमिनिस्ट्रेटर, अगर ये सब टीम है अलग अलग, तो हम लोग क्या करेंगे, सब टीम को उसका स्पेसिफिक परमिशन ही देंगे। तो EC2 इंस्टेंस जो डेवलपर होंगे वो EC2 इंस्टेंस के अलावा डेटाबेस पे जा नहीं सकते, डेटा वेयर हाउस पे जा नहीं सकते, तो उनका स्कोप क्या हो गया, लिमिटेड हो गया, ओके। और डेवलपर को EC2 के बारे, उसके अंदर के एप्लीकेशन के बारे अच्छा पकड़ होगा, ना कि डेटाबेस के अंदर का चीज क्या है, या ना तो डेटा वेयर हाउस के अंदर का चीज क्या है। सो गाइस इन दिस वे कंपनी में क्या किया जाता है कि डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स बनाया जाता है। अब क्वेश्चन एक आएगा कि सर ये यूजर्स कैसे बनाएं, तो वी हैव ऑलरेडी सीन, वी कैन क्रिएट योर IAM यूजर्स, राइट? तो एक IAM यूजर बनाएंगे हम लोग, IAM यूजर, ओके। एक IAM यूजर बनाएंगे और ये यूजर का नाम सपोज दे देते हैं dev1, ओके। और इसको क्या परमिशन दे देंगे, केवल EC2 का परमिशन दे देंगे, EC2 फुल एक्सेस का परमिशन दे देंगे। मतलब कि ये जो एक dev1 का जो यूजर होगा ना, ये केवल EC2 इंस्टेंस को ही एक्सेस कर पाएगा। अगर ये चाहेगा S3 बकेट को एक्सेस करना या डेटाबेस को कुछ एक्सेस करना, AWS में डेटाबेस का सॉल्यूशन है हमारे पास, विच इज कॉल्ड एज योर RDS, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, जो DBA वगैरह होते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या देते हैं, DBA जो होते हैं उनको हम लोग देते हैं RDS का फुल एक्सेस देते हैं, RDS फुल एक्सेस, ओके। सो ऐसे कर करके हम लोग क्या करते हैं, इंटरनली कंपनी के अंदर, देखो कोई भी कंपनी का अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज कर रहे हैं, तो वो भी ऐसा टाइप का एनवायरनमेंट चाहेगा, राइट? वो भी बोलेगा कि नहीं यार मेरा रिस्ट्रिक्ट करो, एक सबका, हर एक यूजर का एक एक अलग लॉगिन क्रेडेंशियल होना चाहिए, और वो पर्टिकुलर यूजर केवल उसके रिलेटेड स्पेसिफिक टास्क को ही कर पाए। जैसे मेरा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो केवल RDS को एक्सेस कर पाए, डेवलपर कोई है मेरे पास तो वो केवल मेरा फुल EC2 का फुल एक्सेस कर पाए, दैट्स इट, राइट? और डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट वो बोल देंगे कि ये पर्टिकुलर यूजर को दोनों का एक्सेस दे दो, या EC2 का भी एक्सेस दे दो, DB का भी एक्सेस दे दो। ऐसे करके देयर कैन बी ए सिनेरियोस, ओके, इन द कंपनी। अब ऐसे करके तो हम यूजर बना लेंगे, बट कंपनी में हो सकता है कि मेरे पास एक डेवलपर ना हो, मेरे पास कितने डेवलपर हो, 500 डेवलपर हो, कितने, 500 डेवलपर। तो डू यू थिंक कि ये 500 डेवलपर के क्रिएट करना, यूजर यूजर तो क्रिएट करना आसान है, बट उसके अंदर जा करके फिर सबके साथ परमिशन अटैच करना कितना हेक्टिक टास्क है, राइट? तब इस केस में मान लो 500 डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, अब 1000 को एक ही परमिशन देना, मतलब 500 को एक परमिशन, 500 को एक परमिशन, राइट? तो हम लोग इस केस में क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि एक IAM ग्रुप बना लो। क्या बना लो, ये तो IAM यूजर का कॉन्सेप्ट हुआ। इफ सपोज वी हैव मल्टीपल पीपल्स, तो हम लोग बोलते हैं IAM ग्रुप बना लो। सो ये IAM ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, सपोज एक डेवलपर का ग्रुप बनाए, ओके, डेवलपर ग्रुप, ओके। अब ये डेवलपर ग्रुप के अंदर हम क्या किए ना, हर एक 500 यूजर को ऐड कर दिए, 500 यूजर्स। क्या हुआ, मेरे डेवलपर का एक ग्रुप बना है और उसके अंदर 500 यूजर्स को ऐड कर दिए। अब जो परमिशंस अटैच करने होंगे ना, वो परमिशन हम कहाँ अटैच करेंगे, इनटू दिस वन। कहाँ अटैच करेंगे, इनटू दिस वन। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे परमिशन अटैच, फाइन। तो देखो क्या हुआ, एक मेरे पास डेवलपर हुआ, डेवलपर ग्रुप एक है, उसमें हम लोग परमिशन को अटैच करेंगे,
तो जैसे परमिशन ग्रुप लेवल पे अटैच करेंगे ना, तो वो हर एक 500 यूजर्स पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। क्या हो जाएगा? हर एक 500 यूजर्स पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अभी दूसरा क्या है? अब ये 500 यूजर्स, तो अभी डेटाबेस के लिए भी हम बनाएंगे, तो यहाँ पर भी एक हम लोग बना देंगे डीबीए ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, देखो अभी हो सकता है कि कुछ चीजें दिमाग के ऊपर से जाए, बट जब लैब करेंगे ना तो एवरीथिंग विल बी मेकिंग सेंस। ओके, अभी जस्ट समझ के चलो। तो एक डीबीए ग्रुप बनाएंगे, और यहाँ पे डीबीए ग्रुप में क्या करेंगे हम लोग, जितने भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है सबको ऐड करेंगे। ओके, तो जितने भी 500 यूजर्स थे उनको हम ऐड कर देंगे। तो एडेड 500 यूजर्स, फाइन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो ग्रुप है ना, इस पे हम लोग परमिशन अटैच करेंगे। फाइन। तो अभी देखो, एक डेवलपर ग्रुप बना, उसमें 500 यूजर डाल दिए, डीबीए ग्रुप बना, उसमें 500 यूजर्स डाल दिए, दैट इज फाइन। तो अभी देखो, हमको इंडिविजुअली एक एक यूजर्स पे जा करके मेरे को कोई भी रूल्स, परमिशंस, पॉलिसीज अटैच नहीं करने हैं। हमको किस पे अटैच करना है? इनटू अ सिंगल ग्रुप। और जो भी उस ग्रुप के अंदर होंगे उस पे वो परमिशन एप्लीकेबल हो जाएगा। देयर कैन बी ए क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर सपोज कीजिए कि मेरे डेवलपर हैं, ओके, एंड वो डेव ग्रुप में ऑलरेडी हैं। ओके, अब मेरे को ना उसमें से कुछ कुछ ऐसे डेवलपर हैं जिनको हमको डीबीए का भी एक्सेस देना, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक्सेस देना है। तो क्या बोले हम, मेरे पास कुछ ऐसे यूजर हैं जो कि किसमें हैं, ऑलरेडी डेवलपर वाले ग्रुप में है। ओके, विद इन दिस 500 वी हैव, बट मेरे को क्या करना है, इसमें से 500 में से दो ऐसे डेवलपर है ना जिनको हमको डेटाबेस का भी एक्सेस देना है। कैन आई डू दैट? यस, यू कैन डू दैट। कैसे कर सकते हैं? ऑल दोज थिंग्स विल बी लर्निंग राइट। देन आई एम ग्रुप के बाद एक कॉन्सेप्ट होता है आई एम रोल का। सो दैट इज बिट एडवांस टॉपिक, तो हम लोग देखेंगे, इफ टाइम परमिट्स विल बी कवरिंग दैट पार्ट एज वेल। ओके, तो अभी देखो ये कैसे करते हैं थोड़ा सा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आई लॉग इन टू माई AWS अकाउंट। अभी देखो, ये जो है ना मेरा रूट यूजर है। ओके, तो यू कैन कंसिडर इट एज एन एडमिन यूजर, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, आईएम के अंदर जाएंगे, ठीक है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। यू कैन सर्च, जिसका यहाँ पे नहीं पॉपअप होगा, यू कैन सर्च IAM। यहाँ पे आईएम पे जाएंगे, एंड देन विल क्रिएट एन यूजर। सपोज एक यूजर बनाते हैं, ये मेरा ऑलरेडी एक यूजर था, I'll delete this। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक यूजर अपना बना रहे हैं। ओके, तो ये यूजर जो है ना, इसका नाम देते हैं developer 1, ठीक है, dev1। एंड हम प्रोग्रामेटिक एक्सेस और पासवर्ड दोनों हम इनेबल करके चल रहे हैं, फाइन। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं, ये इसको मेरा दोनों एक्सेस होगा। मतलब किसका किसका एक्सेस होगा, प्रोग्रामेटिक एक्सेस। मतलब कि मान लो हमको कंसोल के थ्रू, मतलब हम क्या बोले, हम दो वेज से AWS का रिसोर्सेज को प्रोविजन कर सकते हैं। फर्स्ट वे इज बाय एक्सेसिंग इट थ्रू द कंसोल। हम कंसोल के थ्रू जा करके EC2 इंस्टेंसेस वगैरह को डिप्लॉय कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऑल दोस थिंग्स आई कैन डू। सेकेंड वे इज व्हाट, बाय यूजिंग द CLI, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। तो हम कुछ कुछ कमांड लिख करके भी ये सब प्रोविजनिंग वगैरह कर सकते हैं, प्रोविजनिंग, डिप्रोविजनिंग, ये सब चीजें हम लोग कर सकते हैं कुछ कुछ कमांड लिख करके भी, फाइन। तो अब मान लो कुछ कुछ कमांड लिख करके अगर हम ये सब चीजें करेंगे,
तो फिर उसके लिए मेरे को एक्सेस की, सीक्रेट कीज वगैरह चाहिए होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको टिक करके चलते हैं। ओके, तो AWS CLI के बारे में जब पढ़ेंगे ना, देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। तो अभी हम इसको अनटिक करके चलते हैं, ठीक है। अभी केवल हमको आईडी पासवर्ड चाहिए, मान लो हमको कंसोल के थ्रू ही सब कुछ एक्सेस करने हैं, राइट। तो हम बोल रहे ऑटो जनरेट पासवर्ड, और ये अनटिक कर दो, अदरवाइज फिर से पासवर्ड रीजनरेट वगैरह करने बोलेगा, विच वी डू नॉट वांट एज ऑफ नाउ। ओके, क्लिक ऑन नेक्स्ट परमिशन। तो अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऐड यूजर टू ए ग्रुप। क्या मेरे पास कोई ग्रुप है बना हुआ जिसमें ये यूजर को ऐड करना है, तो ऑटोमेटिक पॉलिसी जो उसमें ग्रुप में अप्लाइड होगा वो सब इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो हम बोले कि नहीं, मेरे को ये इंडिविजुअल यूजर बनाना है। ओके, सो अभी देखो ये बोल रहा कॉपी परमिशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग यूजर। तो क्या कोई एक ऐसा यूजर है जिसका परमिशन हमको इसको भी देना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। ओके, हम लेकिन बोल रहे अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसीज डायरेक्टली। ओके, अभी देखो कंपनीज में क्या क्या होता है ना जनरली, कि बहुत, जैसे मान लो हम अभी बोल दिए ना कि ये डेवलपर है, इसको EC2 का फुल एक्सेस चाहिए, तो EC2 ऐसे लिखते हैं हम लोग, एंड देन वील सी फुल एक्सेस का कुछ यहाँ पे होगा ऑप्शन, देखो Amazon EC2 फुल एक्सेस, राइट। तो अभी देखो मान लो कि मेरे को कुछ स्पेसिफिक परमिशन देने हैं कि EC2 का फुल एक्सेस देना है, तो इसके लिए देखो स्क्रिप्ट क्या लिखा हुआ है, यू विल सी द जेसन फॉर्म। अभी देखो इसके लिए EC2 के लिए क्या परमिशन दिया हुआ है, ये सब परमिशन दिए हुए, राइट। तो ये जेसन फॉर्म में ये परमिशन, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग अलाउ EC2 में सब कुछ, ऑटो स्केलिंग वगैरह जितने भी EC2 के अंदर फीचर्स आते हैं वो सब को ये क्या कर दिया, अलाउ कर दिया, राइट। तो कभी ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि मेरे को ना स्पेसिफिक चाहिए EC2 का एक स्पेसिफिक EC2 इंस्टेंस को ही हमको उसको परमिट करना है, या तो फिर मेरे को कोई डिफरेंट वेज से कुछ चीजें करना है, मतलब उसको कुछ परमिशन RDS का कुछ डेटाबेस का देना है, तो कुछ मेरा स्पेसिफिक परमिशन भी हो सकता है जो कि ये ये एग्जिस्टिंग पॉलिसीज में नहीं आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, आई कैन राइट दोस पॉलिसीज इन दिस फॉर्म, ये जेसन के फॉर्म में हम अपना पॉलिसी लिख सकते हैं। एंड वो लिखने के बाद यू कैन क्लिक ऑन क्रिएट पॉलिसी, और जैसे क्रिएट पॉलिसी पे आओगे ओके, सो यू कम टू योर जेसन पार्ट, तो यहाँ पे अपना वो पॉलिसीज को लिख दो। तो जब ये लिख दोगे, सेव कर दोगे, तो अल्टीमेटली यू विल बी अटैचिंग समथिंग, राइट। तो अल्टीमेटली देखो यहाँ पे हम क्रिएट पॉलिसीज में जाके अपना खुद का पॉलिसीज वगैरह भी लिख सकते हैं। अब देखो जनरली ये काम कहाँ पे होता है, आई विल टेल यू वेरी। देखो अभी एक हमारा एक कंपनी था, ओके, सो इट वाज लाइक एक एक्स्ट्रा एक थर्ड पार्टी कंपनी था, ओके। क्या नाम था उसका, आई एम फॉरगेटिंग दैट कंपनीज नेम, सो ओके लीव इट। तो वो एक कंपनी था, वो क्या करता था ना, बोलता था, ऐसा क्लेम करता था कि आपका अगर AWS का रिसोर्सेस आपके पास है ना, तो हमारे पास ऐसा मीन्स टूल है जिसके थ्रू वी विल बी एबल टू रिड्यूस योर कॉस्ट बाई 20 to 30%। मतलब अगर किसी का 1 लाख रुपए का बिलिंग आ रहा है महीने का, सो उनका 70,000 आएगा। तो अब ये कैसे करता था वो लोग, राइट। तो वो लोग क्या बोलता था कि मेरे पास एक अपना प्लेटफॉर्म है, मेरा एक डैशबोर्ड हम आपको देंगे, अगर आप मेरे से जुड़ेंगे तो हम आपको अपना एक डैशबोर्ड देंगे। वो डैशबोर्ड में क्या होगा ना कि आप अपना क्या करेंगे, AWS अकाउंट को लिंक करेंगे, AWS अकाउंट को लिंक कर देंगे मेरे डैशबोर्ड के साथ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, आपको पूरा बेटर मॉनिटरिंग वगैरह करके दिखाएंगे, मतलब EC2 का कौन सा सर्विसेज अप एंड रनिंग है, क्या हो रहा है, किधर किसी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ऑल दोस थिंग्स। कौन सा ऐसा, देखो जब बहुत बड़ा AWS अकाउंट बन जाता है ना, तो इट इज वेरी वेरी हेक्टिक टास्क टू आइडेंटिफाई। ये अभी हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं फॉर फ्यू ऑफ आवर क्लाइंट्स, वी यूज्ड टू सी कि जिसका बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया ना, उसमें बहुत सारे अननेसेसरी रिसोर्सेज होते हैं, ओके। एंड वो अननेसेसरी रिसोर्सेज हम लोगों को पता नहीं चलता है कि वो जनरली यूज में है कि नहीं है। तो उसके कारण क्या होता है, हम लोग उसको डिलीट नहीं करते हैं, जब डिलीट नहीं करते हैं ना, तो उसका कॉस्टिंग मेरा आते रहता है। तो जब भी बहुत बड़ा इंफ्रा, अब मान लो एक AWS अकाउंट पे 2,000 लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग, 2,000 लोग काम कर रहे हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज दोस AWS अकाउंट, करेक्ट। क्योंकि उसमें बहुत सारे अननेसेसरी ऐसे चीजें होंगे ना जो हम लोग को पता भी नहीं होगा कि ये बहुत पहले बनाया गया था टेस्टिंग के लिए, लेकिन अब इसको यूज नहीं किया जा रहा। बट नाउ द प्रॉब्लम इज कि वो सब रिसोर्सेज का हमको पे करना पड़ रहा है AWS को, ऑल्दो वी आर नॉट यूजिंग इट। तो फिर उसको मैनेज करने के लिए लोग क्या बोले ना कि हम आपको ऐसा सोल्यूशन देंगे, डैशबोर्डिंग सोल्यूशन देंगे, जहाँ पे आप आओ अपने AWS अकाउंट को कनेक्ट करो यहाँ पे। तो कनेक्ट करने के बाद क्या होगा ना, आपके जो भी रिसोर्सेज कितने दिन से एक्टिव पड़े हुए हैं, कब यूज हो रहे हैं, कब यूज नहीं हो रहे हैं, एंड उसके बेसिस पे वो रिकमेंडेशन देते थे कि आपका जैसे अगर मान लीजिए T2X लार्ज सीरीज का है ना, तो ये ज्यादा यूज नहीं हो रहा, तो आप T2 माइक्रो पे चले जाओ। तो बेस्ड ऑन देयर रिकमेंडेशन यू कैन बेसिकली गो ahead एंड चूज योर T2 माइक्रो, चेंज कर दो उसको, एंड देन एवरीथिंग विल बी इन प्लेस।
तो कितना अच्छा ये डैशबोर्डिंग फैसिलिटी था, और बाय दिस वे दे वर एबल टू रिड्यूस सम कॉस्ट। तो उनके कॉल पे एक बार हम थे, एंड आई वाज सीइंग लाइक कि हमारे थर्ड पार्टी, हमारे जो क्लाइंट है, वी वर कनेक्टिंग हिज AWS अकाउंट विद दिस वन। तो इनके जो टीम मेंबर थे, ये जो डैशबोर्डिंग वाले के टीम मेंबर, वो क्या बोले कि सर आप एक IAM यूजर बनाओ एंड उसका एक्सेस की सीक्रेट कीज वगैरह मेरे को दे देना। तो यहाँ पर ये क्या किया, आई एम यूजर एक बनाए, एंड यहाँ पे जो परमिशन अटैच करना था ना, अब ये तो जेनरिक परमिशन होगा नहीं, उसका कुछ स्पेसिफिक परमिशन होगा, राइट। तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ा, यहाँ पे क्रिएट पॉलिसी करके, वो जेसन में एक दिया था हम लोग को सारा, उसको हम लोग पेस्ट कर दिए। तो अल्टीमेटली जब वो सेव किया ना, तो ऑटोमेटिकली वहां से वो यहाँ का डिटेल हम उनको भेजे एक्सेस की सीक्रेट की, एंड देन दे वर एबल टू मैप आवर AWS अकाउंट विद देयर AWS अकाउंट। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा मेरा को ये जेनरिक वाला मिल जाए, हो सकता है कि कभी मेरे को स्पेसिफिक थोड़ा कस्टमाइज करना पड़े, किसको, मेरे परमिशंस को। सो इन सच केसेस वी जनरली गो हेड विथ योर क्रिएट पॉलिसीज, और जब क्रिएट पॉलिसीज करोगे तो जेसन में वो परमिशन देना पड़ेगा, एंड यू कैन फिल इट एंड यू कैन सेव इट। तो यहाँ पे मेरे परमिशन अटैच हो जाएंगे उसको। तो अभी हम लोग जेनरिक वाला लेकर के चल रहा है, ओके। सो हम क्या बोल रहे हैं, ये जो डेवलपर होंगे इसको EC2 इंस्टेंस का फुल एक्सेस दे दो, दैट इज फाइन। आई विल क्रिएट यूजर। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको डाउनलोड कर ले रहा है, सिंस हम इसको केवल कंसोल का एक्सेस दिए थे, आई हैव नॉट गिवन एक्सेस की सीक्रेट कीज एक्सेस, तो दैट इज द रीजन व्हाई ये मेरे को केवल आईडी एंड पासवर्ड वगैरह दिखा रहा है, फाइन। अभी देखो ये मेरा एक क्रेडेंशियल हमको मिला, दिस इज माई क्रेडेंशियल, ओके। अभी देखो हम क्या करते हैं, आई विल जस्ट क्लिक ऑन टू दिस पार्ट, आई विल जस्ट कॉपी दिस वन। ये मेरा कंसोल का लॉगिन है। अच्छा ये क्या बोलता है, आप यहाँ पे ओपन करो। तो ये मान लो डेवलपर वन करके एक यूजर हम बनाए। अभी वो यूजर के पास, उसको लॉगिन करने के लिए हम ये एक URL दिए, एंड यहाँ पे यूजर नेम क्या है, dev1, और पासवर्ड को हम पूरा कॉपी कर लेते हैं, जस्ट dev-1, एंड देन आई विल पेस्ट माय पासवर्ड। तो अब ये साइन इन करते हैं, तो देखो ये मेरे को लॉगिन करने दे दिया, राइट। एंड किससे हम लॉग्ड इन है, आई हैव लॉग्ड इन यूजिंग योर dev1। तो देखो dev1 से हम लॉग्ड इन। अभी देखो क्या चैलेंज होगा, इफ आई गो टू EC2 इंस्टेंसेस, तो देखो EC2 के अंदर का जो भी डैशबोर्ड है ना, ये सब मेरे को एक्सेसिबल होगा, ओके। आई विल बी एबल टू क्रिएट माय इंस्टेंसेस, जो भी चीजें करना चाहें हम वो सब काम कर सकते हैं, राइट। हम सब काम कर सकते हैं, देखो अगर लॉन्च भी करना चाहें तो लॉन्च वगैरह भी कर सकते हैं, हमको कोई परमिशन का एक्सेस, कोई परमिशन डिनाइड का ऑप्शन नहीं आएगा, राइट। तो ये परमिशन डिनाइड का ऑप्शन नहीं आएगा, तो फिर टेंशन फ्री हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। बट अगर मान लो, इफ सपोज दे आर सेइंग कि नहीं मेरे को अगर मान लो ये करने हैं, सपोज इफ आई हैव टू गो टू S3 bucket, just give me a second guys। ओके सॉरी फॉर दैट गाइस। ओके तो अभी देखो अगर हम EC2 के अंदर गए तो मेरे को सारा एक्सेस मिल रहा है, राइट। अगर यही यूजर अगर चाहेगा कि S3 बकेट के अंदर जाएं, तो क्या इसको परमिशन देगा? देखो यहाँ पे मेरे को इधर तो परमिशन आया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा रहा, यू डोंट हैव परमिशन टू लिस्ट द बकेट्स। क्यों? क्योंकि ये यूजर को केवल परमिशन क्या है, ये यूजर को EC2 फुल एक्सेस का परमिशन है। अगर ये और भी कुछ में जाना चाहे तो ये जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। सो इन दिस वे वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट द यूजर्स, ओके। और अगर किसी का क्वेश्चन है कि सर अगर मान लीजिए हम कोई ऐसा यूजर बनाते हैं जिसको हम मतलब कि कोई एक ऐसा यूजर बनाए जिसको हम फुल एक्सेस दे दे S3 का भी और EC2 का भी, तो विल दैट बी पॉसिबल? या तो कोई एक ऐसा तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, जैसे अभी EC2 का परमिशन दिए हैं इसको, राइट। तो आई कैन इवन अपडेट द परमिशन फॉर दिस यूजर। तो हम यहाँ पे जाएंगे, ओके, यू कैन क्लिक ऑन टू दिस यूजर,
ओके, अब ये परमिशंस पे आ जाओ, ऐड परमिशन पे करो। ठीक है, फिर से इसको परमिशन दे दो, किसका? S3 फुल एक्सेस का, S3 फुल एक्सेस। तो देखो अल्टीमेटली एक चीज क्या हो रहा है यहाँ पे, कि मेरे को अगर एक यूजर को हम परमिशन कुछ दे दिए तो हम उसको ऐड भी कर सकते हैं, या तो उसका परमिशन को हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो अब देखो ये जो डेव यूजर है, इसको S3 का भी परमिशन है, EC2 का भी परमिशन है। तो अगर हम अभी आते हैं, इस पे आते हैं, इफ आई ट्राई रिफ्रेशिंग दिस पेज, तो देखो मेरे को बकेट वगैरह भी लिस्ट करने दे दिया, राइट? मेरे को क्या बकेट वगैरह भी लिस्ट करने के लिए दे दिया, राइट? भाई ये सब कब का बना हुआ है? लेट मी डिलीट दिस गाइस। देख रहे हो, अब ये यूजर को सब कुछ करने का परमिशन है, राइट? ये सब कुछ नहीं दिखेगा फॉर यू ऑल गाइस, बिकॉज मेरे अकाउंट में ऑलरेडी ये सब बना हुआ था, एंड आई थिंक इसी का मेरे को कॉस्टिंग वगैरह लग रहा था। हम्म, ओके, आई विल चेक दिस लेटर ऑन, और इसको हम बाद में दिखा देंगे। तो मेन इंटेंशन इज व्हाट? मेन इंटेंशन इज लाइक यू हैव टू बेसिकली, ओ ओके ओके, आई थिंक दिस वाज क्रिएटेड बाय सम अदर गाय। ओके, नो प्रॉब्लम, आई लुक इनटू दिस पार्ट लेटर ऑन। तो देखो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेरा है ना, S3 का भी ये पर्टिकुलर यूजर को एक्सेस मिल गया अभी, राइट? सो दिस इज हाउ वी जनरली यूज टू कंट्रोल। तो अभी जैसे मान लो इसका हमको कुछ परमिशन हटाने हैं, तो अगेन आई क्लिक ऑन दिस वन, क्रॉस कर देंगे इसको। सो आई detach दिस वन, S3 फुल एक्सेस का परमिशन। अभी देखो ये detach हो गया, राइट? अभी अगर हम आएंगे यहाँ पे, इफ आई ट्राई रिफ्रेशिंग दिस पेज, so what it will say, so I'll come out, so insufficient permission दिखा रहा था, right? if I'll do create bucket, if I'll go to bucket section, देखो यहाँ पे insufficient permission ऐसे करके रोल आउट होगा, right? So it means हम एक को परमिशन डाल भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं at any point of time without even changing the credentials. ओके, सो दिस इज हाउ, अगर कंपनी में बोले ना एक यूजर बना के दे दो उसको ये एक्सेस दे दो, अगर एक यूजर बना के दो उसको ये एक्सेस दो, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट गाइस। ओके, नो प्रॉब्लम। बट अभी एक चैलेंज और, अगर मान लो हम यही कॉन्सेप्ट बताएं, राइट? ये आई एम यूजर का कॉन्सेप्ट बताएं कि यहाँ पे एक डेव यूजर बना दिए, एक DBA बना देंगे, तो डी मान लो एक S3 यूजर बनाते हैं, उसको S3 का ही फुल एक्सेस देंगे, तो क्या वो EC2 को एक्सेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इन द सेम वे यू कैन डू इट, राइट? तो चलो एक बना ही देते हैं कि S3 का यूजर, ओके, एंड आई ट्राई टू शो दैट एज वेल टू। ठीक है, तो ये देखो मेरे यूजर सेक्शन में आते हैं, तो ये डेव वन यूजर है जिसको क्या EC2 का फुल एक्सेस है, दैट्स इट। अभी एक और यूजर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं S3 यूजर। S3 हाइफन यूजर देखते हैं बनाते हैं।
पासवर्ड बेस्ड रखते हैं इसको। ओके, डोंट चेंज। अभी इसको हम क्या परमिशन देंगे, आई विल गिव ओनली द परमिशन फॉर एक्सेसिंग योर S3 फुल एक्सेस देंगे। ठीक है, दैट्स इट। अब इसको टैग्स रिव्यू क्रिएट यूजर डाउनलोड क्लोज। अभी देखो ये है, इसका क्रेडेंशियल्स को कॉपी करते हैं, तो देखो यहाँ पे मेरे को S3 यूजर का भी बन गया। why it is not opening? हम्म, देखो यहाँ से एक्सेस की सीक्रेट की और ये सब निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। अभी हम जाके इस पे लॉग इन करते हैं। यहाँ पे आईडी पासवर्ड में आई विल जस्ट पुट दिस आईडी इन पासवर्ड। तो ये S3 यूजर था मेरा आईडी और ये था मेरा पासवर्ड। ये पासवर्ड यही तो होगा। नहीं, ब्रैकेट वगैरह तो कहीं आ नहीं रहा है। सो इज इट लाइक पासवर्ड इज स्टिल हियर? ओके, लेट अस ट्राई एंड चेक दिस वन। नो, पासवर्ड इज समथिंग एल्स। पासवर्ड कहाँ तक होगा? इज इट लाइक टिल दिस पॉइंट? यस। तो देखो ये पर्टिकुलर जो यूजर है, इस पे हम अगर EC2 पे जाएंगे और EC2 पे हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, डू यू थिंक आई विल बी एबल टू डू? देखो मेरे को API एरर ऐसे करके दिखा दिया। इट मीन्स आई डोंट हैव द परमिशन, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। क्यों? ये पर्टिकुलर यूजर को केवल S3 का एक्सेस है और किसी का एक्सेस नहीं है। इफ आई चेक अबाउट योर S3 यूजर, S3 बकेट के अंदर अगर हम जाते हैं, यहाँ पे देखो इसको सब कुछ का परमिशन है, राइट? सो दिस इज हाउ जनरली वी वर्क इनटू द इंडस्ट्री गाइस। ओके, तो हम अभी दो यूजर बनाए थे, राइट? टू यूजर आई हैव क्रिएटेड एंड इसको परमिशन दे दी किसका, EC2 का, और इसको परमिशन दे दी S3 का। ओके, अब मान लो ऐसे करके मेरे पास 500 यूजर्स ऐड करने हैं, जिनको केवल S3 का परमिशन देना है। 500 यूजर ऐसे ऐड करने हैं जिनको केवल EC2 का परमिशन देना है। सो इन सच केसेस वी यूज टू क्रिएट ग्रुप्स। ओके, तो देखो यहीं पे अगर आ जाते हैं, इफ आई विल कम ओवर हियर, ये IAM का केस में, सो यहाँ पे देखो यूजर ग्रुप है, राइट? सो अभी ये ग्रुप में किसको ऐड, सो सपोज एक क्रिएट ग्रुप कर रहे हैं, तो ग्रुप का नाम हम डेवलपर रख रहे हैं। ओके, सो इसके अंदर कौन से होंगे? डेवलपर होंगे। डेवलपर कौन है? मेरा dev1। ओके, हम केवल वही बोल रहे हैं, एंड इसको परमिशंस वगैरह क्या अटैच करने हैं वो बोल दो। परमिशन हम बोल रहे हैं EC2 फुल एक्सेस का परमिशन दे दो। ओके, तो अगर हम EC2 लिखते तो देखो EC2 फुल एक्सेस का परमिशन आ गया, तो डेवलपर को खाली यही परमिशन रहेगा। तो देख रहे हो ये डेवलपर के अंदर जो भी मेरे पास यूजर है, डेव यूजर। ओके, तो अभी बोलोगे सर डेव यूजर को भी तो परमिशन था ऑटोमेटिकली, राइट? तो हम क्या करते हैं, यूजर के अंदर जा करके दोनों का परमिशन को हटा देते हैं। देखो यहाँ पे परमिशंस आया ना मेरे पास, यहाँ पे देखो दो परमिशन दिखाएगा, अटैच टू द ग्रुप और अटैच डायरेक्टली। तो हम डायरेक्टली वाला को हटा देते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरे पास इसको क्या मिल गया, EC2 फुल एक्सेस का परमिशन मिल गया, राइट? सिमिलरली अगर यूजर पे आते हैं, तो एक और यूजर है मेरा, कौन सा? S3 यूजर, राइट? हम क्या करते हैं, S3 यूजर का ना परमिशन को हटा देते हैं पहले। देखो देखो परमिशन को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। LD अटैच द परमिशन।
ठीक है, अभी फिर हम क्या करते हैं, यूजर ग्रुप एक बनाते हैं, क्रिएट ग्रुप करते हैं एंड यहाँ पे लिख देते हैं S3 यूजर। ओके, S3 यूजर ग्रुप, कुछ भी नाम दे सकते हो। ओके, अब ये ग्रुप में किसको ऐड करना है, मेरे को S3 यूजर को ऐड करना है एंड इसको क्या परमिशन देना, S3 फुल एक्सेस। इसको परमिशन दे दी, तो अब इसके अंदर जितने भी यूजर्स बनेंगे ना, ये S3 ग्रुप और डेवलपर ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर्स बनेंगे, सब कोई को वो S3 फुल एक्सेस का परमिशन मिलेगा। ओके, तो अभी देखो अल्टीमेटली हम डेवलपर हैं अगर, तो देखो मेरे को EC2 इंस्टेंस का परमिशन हम दे दिए, राइट। इफ विल चेक इनटू द परमिशन, तो इसके पास ये परमिशन है। तो अब मान लो एक और यूजर हम नया क्रिएट करते हैं। ओके, इफ आई क्रिएट अ यूजर, तो हम बोलते हैं dev2 यूजर। क्या यूजर बोलते हैं, dev-2। ठीक है, अब एक प्रोग्रामेटिक पासवर्ड दे रहे हैं इसको, पासवर्ड बेस, ठीक है, एंड इसको हटा देते हैं। इफ आई डू नेक्स्ट परमिशन, तो हम इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ से किस ग्रुप में ऐड करना है क्या, तो हम बोलते हैं ठीक है डेवलपर ग्रुप में इसको ऐड कर दो। कौन सा है, ये dev2 है। ओके, तो डेवलपर ग्रुप में इसको ऐड कर दो। इसको रिव्यू देखो, ये dev2 किसके ग्रुप में है, डेवलपर, क्रिएट यूजर, दैट्स इट। अभी देखो हमको परमिशन भी नहीं डालना पड़ा, क्यों, क्योंकि परमिशन डायरेक्टली इसको किससे मिल जाएगा, ग्रुप से मिल जाएगा। तो ग्रुप में क्या परमिशन है, EC2 फुल एक्सेस का, तो दे विल बी एबल टू डू इट, नो प्रॉब्लम, राइट। तो अभी देखो इफ आई कम ओवर हियर, आई क्लोज दिस वन, तो ये बन गया यूजर एंड आई डोंट वांट टू चेक इट। ओके, यू कैन चेक इट फ्रॉम योर साइड कि ये पर्टिकुलर यूजर जो बना है ना S3 dev2, इसको भी फुल एक्सेस होगा किसका, EC2 इंस्टेंसेस वगैरह का। अभी आ जाओ ग्रुप के अंदर अब देखो ये तो समझ गया कि डेवलपर जो ग्रुप होगा उसकी, उस पे जो भी हम पॉलिसी वगैरह अप्लाई करेंगे, दैट पॉलिसीज विल बी एप्लीकेबल टू इंटायर यूजर इनसाइड दैट पर्टिकुलर डेवलपर ग्रुप, राइट। यहाँ पे S3 यूजर ग्रुप में जितने भी यूजर बनेंगे, उस पे जितने भी यूजर होंगे, उस पे जो भी परमिशन होगा ग्रुप का, वो सब यूजर्स पे एप्लीकेबल होंगे। बट अभी देखो ऐसा सिनेरियो है कि चलो ये जो दो यूजर है ना, ये दोनों को परमिशन क्या मिले हुए हैं, Amazon EC2 फुल एक्सेस। लेकिन इसमें से हम क्या चाहते हैं ना, एक यूजर को EC2 का फुल एक्सेस तो मिले, साथ ही साथ इसको एक्सेस मिले S3 बकेट का भी, क्या इसको ही एक्सेस मिले S3 बकेट का। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो होता है कि ग्रुप लेवल पॉलिसी। देखो ये जो यूजर है इसको परमिशन मिला हुआ है एक ग्रुप लेवल का, देख रहे हो, परमिशन पॉलिसीज ये एक ग्रुप लेवल का मिला हुआ। कम ओवर हेयर, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो dev1 का यूजर है, इसको एक परमिशन मिला हुआ है किसका, एक ग्रुप का परमिशन मिला हुआ, राइट। तो अटैच परमिशन पॉलिसीज, हम यहाँ पे एक पॉलिसी अटैच कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम ऐड परमिशन करते हैं, जब भी ऐड करेंगे ना, यहाँ पे बोलते हैं कि मेरे को, अच्छा इसको अगर हम चाहें तो दूसरे ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं, और ठीक है, तो इसका परमिशन भी एप्लीकेबल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मतलब एक यूजर को हम मल्टीपल ग्रुप्स में भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो हम बोलते हैं S3 फुल एक्सेस। तो मतलब कि इफ आई डू रिव्यू एड परमिशन, तो देखो अभी डेव यूजर को, dev1 को एक तो परमिशन मेरे को किससे मिला हो, ग्रुप से मिला हो, किसका, EC2 फुल एक्सेस। दूसरा परमिशन मिला हुआ है कि S3 फुल एक्सेस, राइट। तो इसको परमिशन मिला हुआ यूजर लेवल पे। तो अभी देखो अगर हम देखेंगे, इफ आई गो टू योर ग्रुप्स, तो यहाँ पे देखो ये जो डेवलपर का जो ग्रुप है ना हमारा, ये जो डेवलपर का ग्रुप है, इसमें मेरे पास दो यूजर है, dev1 एंड dev2। तो dev1 को दो परमिशन है, कौन कौन सा परमिशन है, EC2 एक्सेस भी कर सकता है एंड इट कैन ऑल्सो गो थ्रू योर दिस वन, क्या कर सकता है, और ये EC2 एक्सेस भी कर सकता है, और साथ ही साथ ये मेरा S3 भी को भी फुल एक्सेस कर सकता है। इन केस ऑफ योर dev2, ये क्या कर सकता है, मेरा EC2 इंस्टेंस को ही एक्सेस कर सकता है, नॉट योर, देखो यहाँ पे परमिशन पॉलिसीज में केवल EC2 एप्लीकेबल है, राइट। ये S3 बकेट को कंटेंट को एक्सेस नहीं कर सकता। और एक यूजर को हम मल्टीपल ग्रुप्स के साथ भी बाइंड करके रख सकते हैं। मेकिंग सेंस गाइस? Yes. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो इसी हिसाब से इंडस्ट्री में काम होता है। एंड देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ योर रोल्स। ओके, ये एक रोल का कॉन्सेप्ट है। तो ये रोल का कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना, पहले AWS CLI का कॉन्सेप्ट समझते हैं। किसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, AWS CLI का। तो अभी देखो कैन एनीबडी शेयर देयर स्क्रीन, बिकॉज मेरा सिस्टम में ऑलरेडी CLI कॉन्फ़िगर्ड है।
सो एनीबडी हु वुड लाइक टू शेयर देयर स्क्रीन? एक छोटा सा सेटअप करना है. एनीबडी? Yes, sir. ओके चिन्मय, गो अहेड. Yes, sir. ओके, तो अभी क्या करो ना चिन्मय, इज इट चिन्मय? Yes, sir. ओके चिन्मय, तो अभी अभी क्या करना है ना, मेरे को एक अभी जाओ कमांड प्रॉम्प्ट खोलो, कमांड प्रॉम्प्ट. यहाँ पे लिखो AWS स्पेस कॉन्फ़िगर. प्रेस एंटर की. तो देखो क्या बोल रहा है इधर, AWS इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड. तो अभी हम क्या बोले कि जब भी हम लोग एक AWS अकाउंट्स पे जो भी रिसोर्सेज को प्रोविजन करते हैं, तो देर आर टू वेज ऑफ प्रोविजनिंग. एक तो हम कंसोल के थ्रू प्रोविजन कर सकते हैं, दूसरा हम किसके थ्रू प्रोविजन करेंगे, बाय राइटिंग सर्टेन कमांड्स, राइट. तो हम वो कमांड के थ्रू भी सारा काम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. अब ये कमांड के थ्रू काम कैसे करेंगे, तो कमांड के थ्रू काम करने के लिए यू हैव टू बेसिकली कॉन्फ़िगर योर AWS CLI. अब ये CLI को कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, तो CLI को कॉन्फ़िगर करने के लिए यू हैव टू इंस्टॉल AWS CLI. तो एक नया टैब खोलो और वहां पे लिखो AWS CLI डाउनलोड फॉर विंडोज. पहला वाला डॉक्यूमेंट पे जाओ या. तो ये AWS का डॉक्यूमेंटेशन है. सो यहाँ पे आ जाओ, कम डाउन, कम डाउन, देख लो विंडोज के लिए. यस, यहाँ पे या उसी पे, उसी को डाउनलोड फिर इसको इंस्टॉल कर लो. यस, नेक्स्ट नेक्स्ट करते करते आगे बढ़ जाओ. Yeah. Sir, done. सॉरी, आई वाज टॉकिंग ऑन म्यूट. ओके, नो प्रॉब्लम. सो डन. सो अभी क्या करो ना, यू जस्ट ओपन योर कमांड प्रॉम्प्ट एंड ट्राई रनिंग AWS कॉन्फ़िगर अगेन. देखो फिर से वही आ रहा ना, इसको क्लोज करके फिर वापस से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो. ट्राई रनिंग दैट. देखो अभी ये क्या मांगने लगा, एक्सेस की आईडी, सीक्रेट की आईडी. मतलब कि अब मेरा AWS CLI इस पे कॉन्फ़िगर्ड हो गया है, राइट. तो अभी क्या करना है मेरे को, व्हाट आई हैव टू डू. अब मेरे को नॉर्मली AWS में क्या करना है, एक IAM यूजर बनाना. ओके, अब कौन से यूजर क्या कर सकते हैं, सकेंगे. ओके, सो ऑल दो स्टफ्स. सो अभी देखो क्या करते हैं, जस्ट गो टू योर AWS कंसोल. Yes, sir. अभी यहाँ पे IAM पे जाओ, IAM यहाँ पे नहीं मिलेगा. IAM इट्स एन अनदर सर्विस, वहां पे सर्च करो. यस, दैट इज IAM. अभी एक यूजर बनाना है. ओके, गो टू यूजर. एक यूजर बनाओ, इसको परमिशन दो S3 यूजर का. ऐड यूजर. यहाँ पे एक लिखो S3 यूजर, S3 यूजर. अच्छा, अभी इसको अगर CLI के थ्रू एक्सेस करना है, हमको कंसोल के थ्रू एक्सेस नहीं करना है, तो हम केवल एक्सेस की पे टिक करेंगे. अगर मेरे को ये यूजर से CLI के थ्रू भी कंट्रोलिंग करना है, तो हम प्रोग्राम पासवर्ड वगैरह भी सेट करेंगे. ओके, तो दोनों सेट करके चल दो, नो प्रॉब्लम. नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, बैक
गो बैक, फिर पासवर्ड चेंज करने बोला, कम डाउन, अनटिक दैट वन, नीचे रिक्वायर्ड पासवर्ड इज सेट, यस, परमिशन या अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसीज। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या परमिशन दे दो इसको, S3 फुल एक्सेस लिखो, S3 फुल, देखो आ गया, इसको ये परमिशन दे दो, टैक्स रिव्यू 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 पे करो, उसको रहने दो ऑप्शनल है, क्रिएट यूजर अभी ये डाउनलोड कर लो CSV, ओके, डोंट क्लोज दिस वन। अभी देखो यहाँ पे क्या दे रहा है मेरे को, एक्सेस की आईडी दे रहा है, राइट, जस्ट कॉपी दिस एक्सेस की आईडी, यस, कमांड प्रॉम्प्ट में आओ, यहाँ पे पेस्ट करो, पेस्ट इट, प्रेस एंटर। अभी यहाँ पे सीक्रेट एक्सेस की मांग रहा है, सो व्हाट इज दैट सीक्रेट एक्सेस की, देखो सीक्रेट एक्सेस की भी दिख रहा है मेरे को इधर, राइट, यस, सो करो, कॉपी करो, पेस्ट इट, प्रेस एंटर। अभी देखो रीजन पूछ रहा है कि कौन से रीजन में, तो सपोज हम लोग नॉर्दर्न वर्जीनिया में करेंगे, तो US ईस्ट -1 कर लो, या फिर देख लो कहाँ पे करना है, देखो एक बार ग्लोबल में एक बार टिक करो, यस, देखो हमको नॉर्दर्न वर्जीनिया में, तो उसका रीजन कौन सा है, US ईस्ट -1, तो वो टाइप कर दो, -1, प्रेस एंटर। अभी देखो आउटपुट जो भी मेरा आएगा वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो हम बोलते हैं जेसन फॉर्मेट में होना चाहिए, तो राइट जेसन, JSON, प्रेस एंटर। ये हो गया मेरा अभी AWS कॉन्फ़िगर। मतलब अब मेरा ना सिस्टम, हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट से बैठ करके हम अपने AWS को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अभी मेरे को देखना है कि मेरे में कुछ S3 बकेट वगैरह है क्या, तो उसके लिए हमारे पास CLI कमांड्स है, तो बहुत सारे CLI, जैसे अभी ऑनलाइन हमको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सो यू हैव टू डायरेक्टली राइट, कुछ भी काम करना है, हाउ टू डू दिस यूजिंग AWS CLI, तो बहुत सारे कमांड मिलेंगे, यू हैव टू डू दैट। जैसे अभी मान लो मेरे को चेक करना है कि मेरे S3 बकेट में मेरे कितने S3 बकेट्स वगैरह हैं, तो ये कौन से रीजन में देखेगा, US ईस्ट -1 में, तो हम लिखते हैं क्या, AWS लिखो, AWS स्पेस S3 स्पेस LS, प्रेस एंटर। तो ये देखो इसका कमांड का मतलब होता है कि मेरे US ईस्ट 1 में मेरे पास कितने बकेट है, तो बोल रहा है बकेट है ही नहीं वहां पे, राइट, वहां पे बकेट है ही नहीं, तो एक बार जाओ, एक काम करो, उस पर बकेट बना दो एक, Sir, in my user. नहीं उधर जाओ ना, कंसोल पे जाओ, यस, गो टू S3 बकेट, यस, उसी पे जाओ S3 पे, यस, ये S3 का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, डू नॉट वरी अबाउट दिस, जस्ट टू शोकेस यू कि कैसे ये काम करता है। क्रिएट बकेट, यहाँ पे लिखो माई बकेट या कुछ भी दे दो, ये यूनिक होना चाहिए, माई बकेट और अपना नाम दे देना, यूनिक नहीं हो तो ये लेगा ना, यूनिक, ग्लोबली यूनिक होना चाहिए, राइट योर नेम ऐसा, चिन्मय N222022 लिख दो, ये पूरा यूनिक हो जाएगा, ओके। कम डाउन, अभी ये कौन से रीजन में डिप्लॉय करना है, तो हम बोल दे रहे नॉर्दर्न वर्जीनिया, US ईस्ट 1 में, ठीक है। अभी नीचे आ जाओ, कम डाउन, कम डाउन, कम डाउन, कम डाउन, सब नीचे आ जाओ, सीधे क्रिएट बकेट पर, क्रिएट बकेट। तो देखो एक मेरा बकेट क्रिएट हो गया। अगर मेरा कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू AWS अकाउंट कंट्रोल हो रहा है, तो आई शुड सी दिस बकेट इन माय कमांड, इन माय टर्मिनल एज वेल। तो टर्मिनल में कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, ट्राई सर्चिंग दैट, AWS S3 LS करो, फिर से प्रेस एंटर। देखो मेरे को मेरा बकेट दिख रहा है। सो दिस इज हाउ यू आर कंट्रोलिंग योर AWS अकाउंट फ्रॉम द टर्मिनल। अब हम यहाँ से बैठ के ना AWS के कोई रिसोर्सेज को बना सकते हैं, कोई रिसोर्सेज को डिलीट कर सकते हैं, जो इस पर्टिकुलर यूजर को परमिशन होगा, जिसका एक्सेस की और सीक्रेट की आईडी डाले हो, जो भी परमिशन ये पर्टिकुलर यूजर को होगा वो सब काम कर सकता है ये यूजिंग योर CLI, राइट। तो ऐसा होगा ठीक है।
So this was related to your CLI. हम लोग IAM यूजर के बारे पढ़े, हम लोग IAM ग्रुप के बारे पढ़े, AWS CLI। अभी देखो इंडस्ट्री में क्या होता है ना, व्हाट हैपेंस इनटू द इंडस्ट्री, कि सपोज मेरे पास ना एक सिनेरियो है कि अब कोई भी यूजर होगा, मान लो मेरे पास एक EC2 इंस्टेंस है, अब वो EC2 इंस्टेंस से बैठ करके मेरे को S3 बकेट को एक्सेस करना है। सिनेरियो आ सकता है, राइट? हो सकता है कि कुछ मेरा डेटा है जो जिसको हमको स्टोर करके रखना है S3 बकेट में, क्योंकि S3 बकेट ना चीप होता है, बहुत सस्ता होता है, वहां पे हम अपना डेटा को स्टोर वगैरह करके रखते हैं। आगे में और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें जाकर के स्टोर करेंगे, इसमें S3 बकेट में अपना EC2 का डेटा कहाँ स्टोर करेंगे, S3 बकेट में। इन सच केसेस क्या होगा कि मेरे को यूजर बोलेंगे कि आपको एक्सेसिबिलिटी देना है, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेस की आईडी दे दो, सीक्रेट की आईडी दे दो और ऐसे कॉन्फ़िगर कर दो, राइट? तो यहाँ पे इंडस्ट्री में क्या होता है ना, एक्सेस की आईडी, सीक्रेट की आईडी दिया नहीं जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना, बोलते हैं कि ठीक है, आपको विदाउट यूजिंग योर एक्सेस की आईडी एंड सीक्रेट की आईडी यू हैव टू डू इट। तो फिर उस केस में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ योर IAM रोल। ओके, वो IAM रोल को हम यूज करके वी यूज टू प्रोवाइड दैट एक्सेसिबिलिटी विदाउट इवन यूजिंग योर एक्सेस की एंड सीक्रेट की। तो जनरल टेस्ट पर्पस के लिए वी जनरली गो अहेड विद दिस कॉन्फ़िगरेशन, बट इन प्रोडक्शन हम लोग एक्सेस की, सीक्रेट की नहीं देते। ओके, तो वो कैसे काम होता है, व्हाट इज ऑल अबाउट दैट, तो IAM रोल के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और वो हेविली ड्रास्टिकली इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन अ वेरी बेटर वे, तो वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। सो टुडे आई हैव सेड, राइट, आई हैव वन हैकाथॉन, सो आई विल बी ड्रॉपिंग अर्ली। सो ठीक है, तो दिस वाज रिलेटेड टू योर IAM कॉन्सेप्ट, IAM यूजर क्या होता है, IAM ग्रुप्स क्या होता है, एंड AWS CLI को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। सो देयर इज वन स्मॉल असाइनमेंट फॉर यू ऑल। ओके, सो ये असाइनमेंट में क्या करना है कि AWS यूजिंग योर AWS CLI you have to launch an EC2 instance and then you have to terminate an EC2 instance. तो ये जो कंसोल के थ्रू करते थे ना आप, आई वांट इट टू बी, सो गूगल करो, रिसर्च करो, CLI कमांड्स खोजो, उसको अपना कॉन्फ़िगर करो, इधर इधर क्या करो, एक यूजर बनाओ, उसको EC2 का फुल एक्सेस दे दो, ठीक है? एंड उसके बाद फिर क्या करना है, यू हैव टू जस्ट सर्च फॉर, गाइस प्लीज ओके। सो अभी क्या करना है, आई विल टेल यू, मेरे पास AWS CLI कॉन्फ़िगर करो, और कॉन्फ़िगर जो भी यूजर बनाओगे वो यूजर को EC2 का फुल एक्सेस देना, एंड देन उसका एक्सेस की, सीक्रेट की यूज करके यू हैव टू कॉन्फ़िगर, यू हैव टू डू दिस AWS कॉन्फ़िगर, ठीक है? उसके बाद यू हैव टू सर्च फॉर AWS CLI कमांड्स टू क्रिएट EC2 इंस्टेंस, एंड once you are creating that particular EC2 instance, तो फिर उसको कैसे टर्मिनेट भी करें using your AWS CLI. So that is your task which you have to do. Making sense? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Chalo. So I think this is it from today's class, guys. We'll see you in tomorrow's class. Okay? Thank you, sir. Yeah.